Namaste, good evening, and a warm welcome to all. Thank you everyone for joining us today as we find solution to the problems which are hindering our mental health. Safetree, a brand of A2V Insurance Brokers Private Limited, conducts webinars every week with medical experts on COVID virus to spread authentic medical information to the masses in this gloomy time. Friends, you all know that this invisible virus, I would rather say the wicked virus, has taken an unprecedented toll on our life. इस वायरस के रूप स्वरूप साइंस एंड सिम्टम्स मेडिकल मैनेजमेंट और उसके इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स हम इन सब की डिटेल्स पिछले वेबिनार में कवर करते रहे हैं बट वी फॉरगेट दैट दिस सुनामी हैज नॉट ओनली हार्म्ड थिंग्स एक्सटर्नली but has also triggered a tsunami in our minds. Fallout from this COVID-19, there is a drastic impact on our psychological and emotional well-being. Amidst the social distancing, financial insecurities, lack of medical resources and social disruption, the undercurrents of stress and anxiety is visible everywhere. With this lockdown opening, and going back to this new normal, and there is a huge stress on everybody's mind. The question is how we can take care of our mental well-being, which is now becoming a challenge. To help us this evening, we have with us Mr. Karthik Gupta, a very renowned psychologist. Welcome, Karthik. He is at AKG Vimhans at Pritampura and Satyaniketan, where he provides psychotherapy, counseling, and de-addiction counseling. Karthik is also a part of NGOs like Samvedna and Rhythm of Life for the betterment of underprivileged children with special needs. He's also been a part of the COVID response team during this COVID pandemic to provide psychological assistance to the university children. He has regular shows on CNBC, Awaz, and DD News and Radio, where he shares his expertise on medical health. Welcome, Mr. Karthik, and over to you. Thank you. Thank you, Dr. Supriya. Firstly, good evening, everyone, and I hope all of you are doing well. Firstly, I would like to thank Dr. Supriya and Safetree organization for giving this opportunity to me. I think ये बहुत एक अच्छा initiative है on their part to educate people about health के अलग-अलग issues के बारे में, health के अलग-अलग areas के बारे में. जैसे डॉक्टर सुप्रिया ने पहले बोला कि physical health को लेके Safetree organization ने पहले भी कई webinars conduct किए हैं with renowned doctors. So I think जैसा उन्होंने बोला कि apart from the physical health, क्योंकि ये pandemic is not just a medical crisis. पिछले 1.5 साल से हम सभी इस पैंडेमिक से अलग-अलग तरीके से अफेक्ट हुए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पर आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी व्यक्ति या कोई भी फैमिली है जो इस पैंडेमिक में इम्पैक्ट होने से बची हो. तो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ में द इमोशनल वेलबींग एंड ऑल्सो द मेंटल हेल्थ ऑफ एवरीबडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसा कि WHO ने, हम जानते हैं कि WHO की जो हेल्थ की डेफिनेशन है, इट इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ physical, mental and social well-being and not necessarily the absence of a disease. तो हम हमारे आमतौर की ज़िंदगी में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम हमारी फिजिकल हेल्थ के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं. हम कोई भी परेशानी होती है हम डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, ओपिनियन लेते हैं, इवन सेकंड ओपिनियन लेते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स हमने ये चीज़ देखा है कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है या हमारी इमोशनल वेलबींग को लेकर लोगों में अभी भी कई तरह की भ्रांतियां रहती हैं या बहुत हिचकिचाहट रहती है टू अप्रोच मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स. ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि दिमाग भी हमारे शरीर का एक पार्ट है, तो हम उसके साथ उसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि इट इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन इन द बॉडी. सो आई थिंक जो जैसे ये इनिशिएटिव है, ऐसे ही हमने पिछले 1.5 साल में देखा है बहुत सारी initiatives है. People have started talking about mental health क्योंकि mental health awareness, mental health को promote करने का best तरीका है to spread awareness about it. जैसे मैंने अभी कहा कि unfortunately mental health को लेके बहुत
सारे सिग्मास जुड़े हुए हैं, बहुत सारे टैबू जुड़े हुए हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स रह सकते हैं कि हम जिस तरीके से उनको मूवीज में प्रोजेक्ट किया जाता है, या आमतौर पे जैसे हम देखते हैं कि क्योंकि फिजिकल इलनेस है तो आपको वो सामने दिख जाती है, आपको टेम्परेचर है, आपने उसको थर्मोमीटर लगा के चेक कर लिया, आपको किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो आप उनके टेस्ट करके आपको वो चीज़ पता चल जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो ऐसे सामने से दिखते नहीं है। इस वजह से भी कई बार लोगों में कंफ्यूजन रहती है, थोड़ा सा हिच भी आता है, और इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दैट वी स्प्रेड अवेयरनेस। और जैसा हमने देखा है कि ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, मूवी स्टार्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, अदर फील्ड्स के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, दे हैव ओपनड अप अबाउट देयर स्ट्रगल्स विद मेंटल हेल्थ इश्यूज। सो आई थिंक एक वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो या द वर्ल्ड, ओवरऑल वर्ल्ड हो, कि when celebrities do talk about their struggles with mental health issues, I think थोड़ा सा हम लोग जो कॉमन पॉपुलेशन है वो भी थोड़ा इस बात को नॉर्मलाइज कर पाती है या समझ पाती है कि यार ठीक है, अगर इन लोगों के पास, इनके पास काफ़ी सारी रिसोर्सेज हैं, अपने करियर्स में लोग सक्सेसफुल हैं, उसके बावजूद अगर इन्हें कोई मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है तो हमें भी हो सकता है। और इसी वजह से हमने ये चीज़ देखा है कि अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है फॉर द गुड, कि people have started coming up, people have started approaching mental health professionals for their health concerns। और आई थिंक मैं इसके साथ में ये चीज़ भी ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जैसे साइकोलॉजिस्ट है या काउंसलर्स हैं या साइकाट्रिस्ट है, आप उनके पास सिर्फ तब ही मत जाइए जब आपको लग रहा है कि कोई आपको परेशानी है या आपको बीमारी है। हेल्थ, जैसे पहले मैंने बोला कि हेल्थ इज अबाउट वेलबींग, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार हो उसके बाद ही आप जाके इलाज कराना अपना शुरू करें। हम ये चीज़ जानते हैं कि बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, एथलीट्स हैं, अलग प्रोफेशन के लोग हैं, who do consult psychologists and mental health professionals on a regular basis, ताकि वो एक अच्छे जोन में रहें, अपनी जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको और बेहतर कर पाए। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई बीमारी है या प्रॉब्लम है, या आमतौर पे अनफॉर्चुनेटली जैसे लोग बोलते हैं कि मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो मैं कि एक दिमाग के डॉक्टर को दिखाने के लिए जाऊंगा। तो हम इस दौर में, पैंडेमिक के दौर में, अब लकीली वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी एज वेल। हम सिर्फ बीमारी को ठीक करने की बात नहीं करते हैं, वी ऑल्सो टॉक अबाउट डेवलपिंग द इम्यूनिटी। तो फिजिकल इम्यूनिटी को जैसे हम डेवलप करने के लिए अलग अलग चीज़ों को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं विच वी कैन डू टू इनहेंस आर मेंटल हेल्थ, और हमारी जो इमोशनल वेलबींग है या हमारी जो साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी है उसको हम डेवलप कर सकते हैं, हम उसको बेटर स्टेट ऑफ माइंड या बेटर फ्रेम ऑफ माइंड में रह सकते हैं। क्योंकि फॉर अ फैक्ट वी नो कि प्रॉब्लम्स लाइफ में कभी खत्म नहीं होंगी, स्ट्रेस कभी लाइफ में खत्म नहीं होगा, प्रॉब्लम्स विल ऑलवेज बी देयर। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब कभी भी प्रॉब्लम आती है या कोई मुसीबत आती है, हाउ डू वी डील विद दैट, हम उसको हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे अगर हम काम करते हैं, हमारी रेजिलियंस को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, हम हमारा, जैसे मैंने बोला, इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूँ स्पेसिफिकली कि देयर आर सर्टेन थिंग्स विच कैन बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस जो इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारी वेलबींग अच्छी रहेगी। आई थिंक द फर्स्ट स्टेप कुड बी कि यू टॉक, आप अपने जो आपके मन में बात है, आप जो फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उसको अपने परिवारजनों से या अपने दोस्तों के साथ या जिसके व्यक्ति के साथ आप कंफर्टेबल हैं उनके साथ शेयर कीजिए। अपने अंदर दबा के मत रखिए, क्योंकि ये हम फॉर अ फैक्ट वी नो दिस कि जितना इमोशंस को आप दबा कर रखेंगे या जितनी प्रॉब्लम्स को आप दबा कर रखेंगे, दे विल कम आउट इन डिफरेंट फॉर्म्स। वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन के भी आ सकता है, और इट इज प्रूवन ओवर रिसर्चेस, ये चीज़ प्रूव हुई है कि बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स जैसे स्किन प्रॉब्लम्स हैं, जॉइंट पेन्स है, इवन डायबिटीज़ है, हर फिजिकल इलनेस को एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, वो बढ़ा देता है। तो इसलिए डू शेयर अबाउट योर फीलिंग्स, योर थॉट्स विद योर फैमिली मेम्बर्स, विद योर फ्रेंड्स, और एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को आप कंसल्ट कर सकते हैं अगर आप कोई उसमें हेल्प चाहते हैं।
सेकेंडली एक रूटीन अपना मेंटेन करके रखिए. आई नो पैंडेमिक के टाइम पे काफी लोग, हमने ये अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये चीज देखी, कई लोग हमारे पास जब आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि अब जब बाहर ही नहीं जाना तो रूटीन फॉलो करने का क्या मतलब है, कि हम क्यों रोज नहाए, या क्यों खाना ठीक टाइम से खाए, या क्यों रात सोए, रात को आराम से टीवी देखते हैं या कोई वेब सीरीज देखते हैं, सुबह लेट उठते हैं. आई थिंक ये बहुत एक मेजर प्रॉब्लम है इसकी. हम एक रूटीन इंश्योर करके रखें, रूटीन को फॉलो करें, क्योंकि when we know कि जब आसपास के माहौल में इतनी सारी अनसर्टेनिटी है, having a routine या having a set pattern to your day definitely एक sense of comfort और sense of meaning लाता है आपके दिन के लिए. So you have something to look forward to. आप अपना रोज का नहाना टाइम से रखें, रोज का मील्स खाना टाइम से रखें, एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की आप अपनी मील लें, और स्क्रीन टाइम को हो सके तो मिनिमल रखें. इवन दो यू माइट बी वर्किंग फ्रॉम होम, पर आपका जितना काम के लिए जरूरी है उसके लिए आप स्क्रीन को यूज कीजिए, पर उसके अलावा डू ट्राई टू एंगेज विद पीपल. उसी के साथ आई थिंक थर्ड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है दैट इज एंगेजिंग इन योर हॉबीज. हमने लास्ट ईयर जब पैंडेमिक हुआ था, जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था, उस टाइम हमने सोशल मीडिया वाज फुल ऑफ दीज थिंग्स, जहाँ पे लोग इसको एज अ ब्रेक ट्रीट कर रहे थे. दे वर एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स. उनकी जो हॉबीज रही थी वो उस चीज को एक्सप्लोर कर रहे थे. पीपल आर गोइंग बैक टू दोस चाइल्डहुड डेज, सो टू से, कि जो वो बचपन में किया करते थे, दोबारा उनको टाइम मिला तो उन्होंने उन एक्टिविटीज में एंगेज किया, एंड पीपल फेल्ट वेरी गुड, वेरी वेल. इक्वली इम्पॉर्टेंट अब है कि हम उस चीज को ऑन ए रेगुलर बेसिस मेंटेन करें. आपकी हॉबीज है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई गेम खेलना हो सकता है, कुकिंग हो सकती है, रीडिंग बुक्स हो सकता है, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, फोटोग्राफी, कुछ भी हो सकता है. आपको जिस चीज में शौक है, या पहले आपको जिस चीज में मजा आता था, अनफॉर्चुनेटली आप टाइम की वजह से अगर नहीं कर पाए, नाउ इज द टाइम दैट टू इंश्योर दैट यू आर इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड. आप उसको अपने रूटीन का एक पार्ट बनाइए और डू एंगेज इन योर हॉबीज ऑन अ रेगुलर बेसिस. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्थ पॉइंट आई थिंक कुड बी कि जैसे मैंने पहले बोला कि इट इज नॉट अबाउट द सिचुएशन या प्रॉब्लम, हमारा जो अप्रोच है टुवर्ड्स इट, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. तो अगर आप प्रॉब्लम के बारे में, किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं या कोई दिक्कत है, उसके बारे में बात कीजिए, उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए. देयर आर एन नंबर ऑफ ways a problem can be solved, और आप लोगों से उसमें हेल्प लीजिए, बात कीजिए, सिर्फ उसको अपने तक मत रखिए. सो आपका जो अप्रोच है ऑफ डीलिंग विद थिंग्स, एंड ऑल्सो आई थिंक एक जो हैविंग दिस मोटो कि जो ये प्रॉब्लम है, जैसे ये पैंडेमिक का समय है, दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, राइट. सो एक जैसे कहा जाता है कि दिस टू शैल पास. सो चेंज इज अ कॉन्स्टेंट. वो हमेशा चीजें इवॉल्व होती रहेंगी, चीजें हमेशा बदलती रहेंगी. अगर आज मुसीबत का समय आया है, डज नॉट मीन कि वो हमेशा के लिए वैसे ही चलता जाएगा. सो वी डू नीड टू हैव पेशेंस, एंड विद द राइट एटीट्यूड हमें उस चीज को फेस करना जरूरी है, ताकि जब समय बदलता है, जब बेहतर समय आता है, हम उस चीज को बेटर तरीके से हैंडल कर पाए, बेटर तरीके से डील कर पाए. और द लास्ट पॉइंट आई थिंक ये हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं आके खुद से नहीं बोलना चाहूँगा, बिकॉज दिस इज अ लाइव सेशन. सो हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस ले पाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों से इस बारे में बातचीत हो पाएगी, आई थिंक उतना ही हमारे लिए बेटर रहेगा, बिकॉज दैट इज द मेन मोटिव ऑफ हैविंग दिस सेशन इन द फर्स्ट प्लेस. सो आई थिंक द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज कि आपकी मेंटल हेल्थ इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, इफ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन योर फिजिकल हेल्थ. तो कहीं भी कोई परेशानी महसूस होती है, आपके घर के पास में, आपकी सिटी में जो भी साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है, साइकेट्रिस्ट है, प्लीज उनसे जाके कंसल्ट कीजिए. और आई थिंक अब जो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कि पीपल आर कंसल्टिंग ऑनलाइन एज वेल, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी क्लिनिक में जाए या हॉस्पिटल में जाके देखें. अब कंसल्टेशंस ऑनलाइन भी ऑफर हो रही है, although definitely in person session better रहता है, पर ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी अब ऑफर की जा रही हैं हर जगह. सो दैट हैज आल्सो गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू पीपल जो शायद उस शहर से या उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, या प्रोफेशनल्स ही अवेलेबल नहीं है. तो इस तरीके से अगर हम इसको यूज करते हैं कि कहीं भी कोई दिक्कत महसूस होती है, या इन जनरल भी, इफ यू वांट टू वर्क अपॉन योर मेंटल हेल्थ, इफ यू वांट टू बी इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड, आई थिंक आप
डेफिनेटली एक किसी क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हैं. So thank you. I think Dr. Supriya, we can probably take it forward. अगर कोई अभी questions आए हैं तो. Thank you, Karthik. I had a couple of questions which were there, and a few more have come as well. So, सबसे पहले, I would like to know that how do we identify that one is anxious or one is stressed? So, what will be the signals? जी, I think it's a very good question, Dr. Supriya, क्योंकि identification is definitely the most important part. See, हम सभी को कभी ना कभी परेशानी फील होती है, हमें लो भी फील होता है. We do feel anxious also at certain point of time. लेकिन हम जब एक मेंटल इलनेस की या साइकोलॉजिकल इलनेस की बात करते हैं, उसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. फर्स्ट थिंग वुड बी द ड्यूरेशन, कि कितना टाइम से ये चीज हो रहा है, कितने समय से ये चीज चल रहा है. जो साइकाट्रिक इलनेस है, जैसे क्लिनिकल डिप्रेशन है या एंजाइटी डिसऑर्डर है या ओसीडी है या कोई भी बाकी की जो बीमारियां हैं, दे हैव क्राइटेरियाज कि एटलीस्ट इतना ड्यूरेशन के लिए ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करना चाहिए. सो आई थिंक दैट वुड बी द फर्स्ट थिंग कि कितना ड्यूरेशन है या कितना टाइम से ये चीज चल रही है. सेकेंड वुड बी द सिवेरिटी ऑफ द सिम्टम्स एंड कितना परवेसिव है. परवेसिव मतलब कितना अक्रॉस द सिचुएशंस ये चीज हो रही है, कि ऐसा नहीं कि आप घर पे हैं तो ठीक है. अब जैसे आमतौर में थोड़ा सा इसी से रिलेटेड चीज है कि अनफॉर्चुनेटली हम ये चीज देख रहे हैं कि लोग आजकल बहुत कैजुअली ये टर्म यूज करते हैं कि मैं डिप्रेस्ड था, राइट. बट देयर इज अ डिफरेंस इन फीलिंग सैड एंड हैविंग अ क्लिनिकल डिप्रेशन. हम सभी को लो फील हो सकता है, हम सभी को उदासी फील हो सकती है, लेकिन क्लिनिकल डिप्रेशन जो है, जिसको हिंदी में अवसाद कहा जाता है, अगर उसकी मैं एग्जांपल के तौर पर अगर बात करूं, उसमें होता है कि आपको एटलीस्ट 2 हफ्ते तक लो मूड रहता है, आपको एनहेडोनिया, एज इन की आपको जो चीजें पहले पसंद थी अब वो करने में अच्छा नहीं होता है, वो करने का मन नहीं होता है, और इजी फटीगेबिलिटी, कि बिना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करे, बिना कुछ काम किए आपको हर वक्त थकावट महसूस होती है. सो दीज आर द बेसिक 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डिप्रेशन. इसके अलावा चेंजेस इन स्लीप, कई लोग होते हैं जो कम सोने लगते हैं या कई लोग ज्यादा सोते हैं. चेंजेस इन एपेटाइट, कम भूख लगना या ज्यादा भूख लगना. कुछ केसेस में इवन इतना सिवियर होने लगता है कि दैट पीपल स्टार्ट हैविंग सुसाइडल थॉट्स, और सम पीपल इवन अटेम्प्ट. तो आई थिंक, और ये एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते तक कंटिन्यूसली रहता है. अगर ये चीजें रहती है तो एक क्लिनिकल डिप्रेशन डायग्नोस किया जा सकता है. सिमिलरली एंजाइटी का, जैसे आपने बताया, आपने नाम लिया, हम सबको अलग अलग फेज में, अलग अलग सिचुएशन में एंजाइटी फील हो सकती है, जिसको हम आमतौर पे टेंशन भी बोलते हैं, घबराहट भी बोलते हैं, बेचैनी भी बोल सकते हैं. लेकिन उसको बीमारी क्लासिफाई करने के लिए या कैटेगराइज करने के लिए वही इट हैज टू बी देयर फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम. और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, द फंक्शनिंग, जो पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल, इन 3 लेवल पे अगर व्यक्ति की फंक्शनिंग हैम्पर हो रही है, खराब हो रही है, कि वो पहले जैसे काम करता था अब उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, बिहेवियर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कि पहले बहुत शांत था, शांत स्वभाव का था, अच्छे से लोगों से घुल मिल के रहता था, अब व्यवहार में बदलाव आ रहे हैं कि अकेला अकेला रहता है, लोगों से बात नहीं कर रहा है, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ने लगता है या गुस्सा करने लगता है. सो आई थिंक दीज आर बेसिक सिम्टम्स जो हमको वी नीड टू बी वेरी ऑफ, कि अगर कोई भी ऐसी चेंजेस हम अपने आप में या हमारे किसी परिजन में नोटिस करते हैं, इट कुड बी एन इंडिकेटर ऑफ एन अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल इलनेस. सो इसीलिए बेटर रहेगा कि कोई आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से जाके कंसल्ट करें. और आई थिंक इसी के साथ में एक चीज और भी बोलना चाहूंगा कि इट इज ऑल्सो नॉट जस्ट अबाउट द डायग्नोसिस. हम कभी कभी बहुत डायग्नोसिस से बहुत ज्यादा एसोसिएट करने लगते हैं कि मुझे ये बीमारी हो गई है, सो वी स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट, हम उसके बारे में गूगल करते हैं, पढ़ते हैं, हम और परेशान होते हैं. क्लिनिकल प्रैक्टिस में और हमारी खुद की प्रैक्टिकल लाइफ में भी मोर देन द डायग्नोसिस इट इज द मैनेजमेंट पार्ट विच इज मोर इम्पोर्टेंट, जो कि साइकोथेरेपी के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू और सर्टेन मेडिकेशंस के थ्रू, इफ द नीड अराइजेस, चीज को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है.
We just got a question. Somebody is asking, how do you deal with COVID fear? So, जी हाँ जी. जी आई थिंक ये कोविड पैंडेमिक के टाइम पे हमने ये चीज़ देखा है कि बहुत लोगों को कोविड से रिलेटेड बहुत सारी डर बैठ गया है मन में, या कई लोगों को जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम थी उनका प्रॉब्लम एग्जैस्परेट हो गया या बढ़ गया है. आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो हमारा बेसिक प्रोटोकॉल है विच इज़ लेड डाउन बाय द डॉक्टर्स एंड द साइंटिस्ट, हमें उस चीज़ को फॉलो करना ज़रूरी है. जो अननेसेसरी की इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है हर जगह, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे, उससे दूर रहे, क्योंकि दैट इज ओनली एडिंग ऑन टू द एंजाइटीज जो विच इज ऑलरेडी प्रिवेलिंग इन द सिचुएशन. ठीक है. प्लस अगर आप अपने यू आर टेकिंग केयर ऑफ द जो बेसिक प्रोटोकॉल है, आपके बेसिक सेफ्टी मेजर्स, अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं, आई थिंक वो चीज़ ठीक रहेगा. कोई उसमें डर वाली या दिक्कत वाली बात नहीं है. एंड एज आई सेड अर्लियर कि अगर हम इम्यूनिटी पे हमारा काम कर रहे हैं बोथ फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल लेवल पे, तो इट कैन बी मैनेज्ड. अगर हम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा, जैसे अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि इस टाइम पे पैनिक का सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट हो गया है, मोर देन द डिजीज इटसेल्फ. पैनिक से लोग ज़्यादा परेशान हुए हैं, ज़्यादा उनको दिक्कत हुई है. तो वही, अगर हम इंफॉर्मेशन को लिमिटेड रख सकते हैं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को फॉलो कर सकते हैं, और बेसिक प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए वी ग्रेजुअली स्टार्ट गेटिंग बैक इनटू आवर डेली लाइव्स, आई थिंक वी कैन डेफिनेटली हैंडल दिस. We've just got a question. Somebody says that people have lost their near and dear, especially with this COVID phase wave 2. So, and they have developed fear and phobia regarding the disease. So how should one handle this kind of a situation? See, that is what कि unfortunately ये situation ऐसा रहा है कि हर एक व्यक्ति ने, हर एक फैमिली ने लॉस एक्सपीरियंस किया है. एंड आई थिंक ये हम सब इस पॉइंट पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो द फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू गिव टाइम टू आवरसेल्व्स टू डील विद दिस, इन द सेंस कि जो हमें लॉस हुआ है, जो हमारे फैमिली में की डेथ हुई है, इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोसेस दैट. कई बार क्या होता है कि हम उस चीज को, वो इमोशन इतना ओवरवेलमिंग लगने लगता है या इतना अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, हम उस चीज को दबा देते हैं कि हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, या हम जान के डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं, मूवीज देख के, अलग अलग चीजें करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज कि हम उस चीज को प्रोसेस किया जाए. लेट योर सेल्फ ग्रीव, लेट योर सेल्फ प्रोसेस द लॉस दैट यू एक्सपीरियंस. इट विल टेक टाइम, पर वही हैव थोड़ा सा रूटीन अपना दिन में फॉलो कीजिए, एक सेट रूटीन रखिए, ग्रेजुअली गेट बैक टू योर डेली फंक्शनिंग. थोड़ा सा टाइम अपने जो आपके लव वन है जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में अपनी फैमिली से बात कीजिए, उनके जो अच्छी यादें थी उन चीज़ों के बारे में याद कीजिए. बिकॉज आई नो कि बहुत डिफिकल्ट फेज है, लेकिन जो उनकी यादें हैं या जो उनके वैल्यूज थे, जो आपका उनके साथ रिश्ता था, दैट विल स्टिल बी देयर विद यू फॉर एवर. अनफॉर्चुनेटली लोग आज हमारे साथ फिजिकली मौजूद नहीं है, बट दे विल स्टिल कंटिन्यू टू बी देयर विद अस. सो आई थिंक दैट ग्रीविंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जितना उसके बारे में आप अपने लोगों से बात करेंगे, अपनी फैमिली मेम्बर से बात करेंगे, और अगर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करेंगे इसके बारे में, this can be managed. Mr. Karthik, do we have any exercise that helps us to be mentally alert? कुछ हम कर सकते हैं अपने आप को mentally alert रखने के लिए? See, exercises of any sort, जैसे physical activity कोई भी है, that will help you, क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं कि अगर physical activity हम करते हैं, they lead to the release of endorphins, जो natural stress killers होते हैं. तो अगर कोई भी तरीके की हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दैट विल डेफिनेटली हेल्प टू बूस्ट योर मेंटल हेल्थ या आपका साइकोलॉजिकल वेलबींग. उसके साथ में आई थिंक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होती है, सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन है, योग है. योगा हमारे कल्चर में हमेशा से रहा है. सो आई थिंक अगर हम उन चीज़ों को ऑन अ रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा भी, हाफ एन आवर अ डे इज इनफ, आई थिंक वो काफ़ी अच्छा रहेगा. और आई थिंक मैं जैसे पर्टिकुलरली अगर एक एक्सरसाइज के बारे में बात करना, मैं अगर जस्ट टू ब्रीफली उसके बारे में एक्सप्लेन करूँ तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक एक्सरसाइज होती है, विच इज
which is a very effective way of relaxing yourself. तो मैंने ये मतलब हम हमारे क्लिनिक में इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, लोगों को सिखाते हैं. बहुत अजीब बात है कि बहुत सारे लोग आज तक सांस ही गलत तरीके से लेते हैं कि when you ask them to inhale वो अपनी चेस्ट को एक्सपैंड करते हैं और पेट अंदर खींच लेते हैं, and when they breathe out तो चेस्ट वापस नॉर्मल पोजीशन में आती है और पेट बाहर आ जाता है, which is just the opposite of जो actually healthy way of breathing है. So this comes as a surprise to a lot of people कि हम अभी तक सांस ही गलत तरीके से ले रहे थे. तो focusing on your breathing कि you inhale for a couple of 3 to 4 seconds, उसको चेस्ट में नहीं अपने पेट में हवा भरिए कि पेट बाहर जाए. Hold your breath for about 4 to 5 seconds and then you slowly breathe out through the nose. और आप जैसे breathe out कर रहे हैं पेट वापस अंदर की तरफ आएगा नॉर्मल पोजीशन में. और जो ये ब्रीदिंग आउट प्रोसेस है दिस इज स्लोअर, सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक 1:2 के रेशो में कि अगर आप 3-4 सेकंड के लिए ब्रीद इन कर रहे हैं, 5 to 6 seconds you hold your breath and then about 7 to 8 seconds you breathe out. So doing this exercise, this breathing exercise for about 10 minutes at any point of time, आप चाहे, और इसमें कुछ नहीं लगा, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, आप मेट्रो में ट्रैवल करते हुए कर सकते हैं, कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, you need a break, you need a breather. Doing this exercise will help you to be present in the moment, जिसको मेडिटेशन में बोला जाता है कि you can use your breathing as your anchor. हम ये चीज जानते हैं कि हमारे ख्याल है, हमारे मन है, वो हर जगह भटकता है, उसका that is the basic nature of it. लेकिन हम हमारी breathing को as an anchor यूज सकते हैं to be here in the moment, to be in the present. So focusing on your breathing and let your thoughts come and go, I think that can be practiced on a regular basis to ensure कि आपका focus रहेगा and you will be in the present, which will definitely help your mental health. हमने ये देखा गया है कि बहुत से लोग डिप्रेशन के मरीज हैं. सो ऐसे लोग कोविड टाइम में उनको क्या करना चाहिए ताकि उनकी सिचुएशन और वर्सन ना हो, या उनके फैमिली मेंबर्स को किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि ये सिचुएशन उनकी वर्सन ना हो? जी, आई थिंक जैसे मैं पहले कह रहा था कि अगर कोई ऑलरेडी साइकोलॉजिकल इलनेस है, किसी को बीमारी है, डिप्रेशन है और एंजाइटी कोई भी है, the first thing is they should continue with the treatment. जो उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट था वो कंटिन्यू रखा जाए. उसके साथ में अगेन having a set routine, अपना थोड़ा काम रोज कीजिए. Do ensure that you are engaged in some physical activity. अपना थोड़ा सा टाइम अपनी हॉबीज में भी एंगेज कीजिए, ठीक है, चाहे मन करे या ना करे, क्योंकि हम ये चीज जानते हैं डिप्रेशन में मन नहीं करता, या जो चीज जैसे मैंने पहले बोला एनहेडोनिया, दैट इज लॉस ऑफ प्लेजर. अगर सपोज कोई इंसान है जिसको स्केचिंग बहुत पसंद था पहले, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग द एपिसोड ऑफ डिप्रेशन, अब उस चीज में मन नहीं करता. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दे शुड स्टिक टू इट. उसको स्केचिंग अभी भी करें, not to feel good or not to feel happy, but just because it is something that they have been doing it, और वो उनके एक्चुअली ट्रीटमेंट का पार्ट है. वो करते रहें, उसको स्केचिंग रेगुलर करें. अगर उनको अच्छा फील होता है, अगर उनको बेहतर फील होता है, दैट इज अ बोनस, दैट इज नॉट द टारगेट. तो द पॉइंट इज द मोर यू डू द लेस यू फील. इसको इस तरह अगर देखा जाए कि आप उसको जितना एक्टिव रहेंगे, क्योंकि और आई थिंक इसके साथ एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि स्पेंडिंग एज लिटिल टाइम ऑन द बेड एज पॉसिबल. डिप्रेशन में हम ये चीज भी जानते हैं कि लोगों का क्योंकि मन नहीं करता है कुछ करने का, तो दे टेंड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन द बेड, इट्स लाइंग इन द बेड इटसेल्फ. वो चाहे उठ गए होंगे पर वो बेड पे लेटे रहते हैं, वो पड़े रहते हैं बेड में. उठने का क्योंकि मन नहीं होता है, उठने की इच्छा नहीं होती है. थोड़ा करके बेड से उठिए, थोड़े से काम में एंगेज कीजिए, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली. और जैसे आपने पूछा फैमिली मेंबर्स क्या कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इज कि उनके साथ रहे. नॉट नेसेसरी कि आप उनसे हर टाइम बात ही करते रहें, उनसे पूछते रहें कि क्या चल रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है दिमाग में. इट इज ओके, यू गिव देम द स्पेस. आप उनके साथ रहिए जस्ट टू इंश्योर कि वो ठीक स्पेस में है, वो सेफ है. जब उनका मन करता है बात करने का, वो बात भी करेंगे, पर जस्ट बी अराउंड, गिव देम द स्पेस. और कोशिश कीजिए कि थोड़ा उनको किसी घर के काम में एंगेज करने का,
इन्वॉल्व करने का, थोड़ी थोड़ी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में दे दीजिए, ताकि उन्हें ये चीज़ फील ना हो कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बेकार हो गया हूँ. तो इसीलिए थोड़ा सा चीज़ में एंगेज रखें. फैमिली टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप उसमें बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, कोई गेम्स हो जैसे डमशराज हो गया, कुछ हो गया, ऐसा कुछ चीज़ आप खेल सकते हैं. चाहे तो पुरानी फोटोग्राफ्स फैमिली की है वो देख सकते हैं. सो आई थिंक दीज थिंग्स doing them on a regular basis will definitely help them to recover. और ये जो difficult time है during the pandemic, इससे निकलने से उनको मदद करेगा. Somebody wants to know कि how do people manage difficult situations like isolation and job losses? Again, these are practical issues. और अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक की वजह से ये चीज़ें आई हैं. जॉब लॉस वो है, अगेन उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही है कि आप हताश मत होइए, आप डू नॉट लूज होप, ट्राई एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस. आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है, तो हो सकता है आपको अपना थोड़ा स्किल सेट पे काम करना पड़े. यू लर्न समथिंग न्यू एंड उस चीज़ से आपको हेल्प हो सकता है to get a better job or to get a new job as well. Isolation, as I mentioned, very important. You do talk to people, अपने family से, friends से बात कीजिए. Technological advancements इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, this webinar being the very example of it, कि हम अपने अपने घर से बैठ के इसको कर पा रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको देख सकते हैं, बाद में भी देख पाएंगे. So टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से टच में रहने के लिए. उनको कभी कॉल कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, मैसेजेस पे बात कीजिए. तो आई थिंक और ग्रेजुअली, क्योंकि लकीली अब चीज़ थोड़ी सी बेटर हो गई है, सो while following the basic protocol, अपनी basic precautions को follow करते हुए, do start stepping out of the home. थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू कीजिए, क्योंकि घर पे रहने से, डर के रहने से हम इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से जीत नहीं सकते. हमें इस पैंडेमिक को, इस क्राइसिस को मिलकर ही हैंडल करना, और अकेले नहीं होगा ये. Somebody wants to know कि दिल और दिमाग को समझाना कितना मुश्किल है. आई थिंक दोनों अगर साथ में काम करें तो बहुत बढ़िया है. क्योंकि हम कोशिश हमेशा यही करते हैं कि दोनों मिलके काम करें, साथ में काम करें. बट देन वही कि देयर आर टाइम्स जब हमें इमोशनली सोचना जरूरी होता है या इमोशंस के साथ काम करना जरूरी है, एंड देयर आर टाइम्स जहाँ पे लॉजिकल होना, प्रैक्टिकल होना, रियलिस्टिक होना ज्यादा जरूरी है. सो आई थिंक अगेन इट इज द बैलेंस विच इज मोर इम्पोर्टेंट, जिसको हम एक, अगर हम लॉजिकल माइंड बोलते हैं और एक इमोशनल माइंड है, तो जो उन दोनों का कॉमन एरिया है दैट वुड बी द विजडम और द वाइज माइंड. कि सिचुएशन के हिसाब से आप अपने आप को ढालिए, अपने आप को चीज को मैनेज करने का कोशिश कीजिए. जहाँ पे लॉजिक का जरूरत है वहाँ पे लॉजिक से काम कीजिए, जहाँ पे इमोशन जरूरी है हम उस हिसाब से काम करें. पर वही उसका सबसे इम्पोर्टेंट एज इन द प्री रिक्विजिट या उसका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये होगा कि टू बी अवेयर ऑफ दैम. अनफॉर्चुनेटली हम उन चीज़ों के लिए अवेयर ही नहीं होते, बिकॉज हम हमारे खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं. वी डू नॉट नो हाउ टू जस्ट बी बाय आवरसेल्व्स. बहुत लोगों को इस बारे में दिक्कत होती है कि वो अपने ख्यालों के साथ कैसे रह सकते हैं, बिना कुछ करे, अकेले हैं, क्या करें. तो आई थिंक वही कि भगवान ने, एवोल्यूशन ने हमें इतना अच्छा दिमाग दिया है, इतना वेल फंक्शनिंग एक ब्रेन दिया है, सिस्टम दिया है. आई थिंक इट इज हाई टाइम वी स्टार्ट knowing about it, we start to learn how to exactly use it. क्योंकि I think आज तक दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री is still the human brain. हमें ये नहीं पता कि उसका एक्चुअली कैपेसिटी कितना है, वो क्या क्या अचीव कर सकता है. बिकॉज इवन टुडे अकॉर्डिंग टू साइंस, जो प्रेजेंट पैराडाइम है, जो प्रेजेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं which people are able to do with mental strength, but then there is no scientific explanation to that as such. So I think learning to be with yourself, learning to be with your thoughts is very important, which again will make sure कि आप psychologically एक healthy being है या more resilient है.
आई थिंक इससे एक चीज और रिलेटेड है डॉक्टर सुप्रिया. अनफॉर्चुनेटली हम हमारे थॉट्स को या ख्यालों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. जैसे बोलता है कि उसको सिर चढ़ा के ऑलमोस्ट सिर चढ़ा के रखते हैं हमारे दिमाग को, ऑल्दो सिर में ही है. पर द पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज अ थॉट इज जस्ट अ थॉट, इट इज नॉट रियलिटी. हर चीज जो हमारे दिमाग में आती है, हर चीज जो हम सोचते हैं, जरूरी नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दैट डज नॉट मैटर. इट इज जस्ट अ थॉट, इट इज नथिंग एल्स. तो अगर हम वो थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर पाते हैं विद आवर थॉट्स, आई थिंक आवर एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशंस डेफिनेटली बेटर हो जाएगा, एंड विल नॉट बी ड्रिवन by too much of the thought or even with the emotions. जैसे हम इमोशन में बहेंगे नहीं. Thanks. This is a college mom asking for her daughter that it's been more than 1 year since my daughter has stepped out of the house, and she feels that she's missing the wonderful years of her college life, which will never come back. Though she understands the situation and adjusting with everyone in the house, but now after waiting for more than a year, she gets irritated frequently. And is there a way that she can cope up with it, as we see no hope for the college to be opening soon? And she intends to go to her best friend's house to meet her in person, but their family has just recovered from corona, and also because she is staying in a joint family with elderly people, so the parents are scared to send her. The parents do advise her to meditate and to do exercises, but she is not interested at all. So how can they help her, their daughter? That's what they want to know. बहुत सारी चीजें आ गई इसमें. आई थिंक सी वही कि we need to step out obviously. कि अब जैसे चीजें बेटर हो रही हैं, it is important that people do step out of their homes. And जैसा उन्होंने आई थिंक उस क्वेश्चन में था कि she wants to go to her best friend's house, but then अगर उनकी फैमिली में अभी just people have recovered, so obviously बहुत नेचुरल सी बात है कि अभी they might not be very comfortable with anyone coming to their home. पर वही that is where you use technology. आप उनसे अपने फ्रेंड से कांस्टेंट टच में रहिए, बात कीजिए, थोड़ा सा टाइम वेट कीजिए. जैसे चीज बेटर होती है आप प्रॉब्ली बाहर मिल सकते हैं, या इफ शी इज कंफर्टेबल यू कैन प्रॉब्ली कॉल हर टू योर होम इटसेल्फ. जहाँ तक कॉलेज की बात है, वही अनफॉर्चुनेटली देयर इज एब्सोल्युटली नो क्लैरिटी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कब खुलेंगी. सो देयर इज एब्सोल्युटली नो वे टू टेल कि व्हेन विल थिंग्स बी नॉर्मल. पर वही है कि अगर आप एक बेसिक रूटीन फॉलो करते हैं, यू डू ट्राई टू यूज दिस टाइम. आपको अगर ये टाइम मिला है कि अपने लिए यूज करने के लिए, या आप अपनी खुद की सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, आई थिंक यूजिंग दिस टाइम वाइजली इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन हम अगर उसी चीज का वेट करते रहे. क्योंकि आई हेट टू से दिस, पर हमें ये चीज पता है कि दिस इज डेफिनेटली नॉट द लास्ट पैंडेमिक. ये ना ये पहला पैंडेमिक था, ना ये लास्ट है. थिंग्स वी आर नॉट श्योर कि चीजें आगे कैसे चलने वाली है, पर जैसे अभी का करंट सिचुएशन है, दिस माइट नॉट बी द लास्ट पैंडेमिक इटसेल्फ. तो हो सकता है आगे भी सिचुएशंस ऐसी आएंगी. इसलिए जरूरी है कि हम ये टाइम को यूज करें अपने बारे में जानने के लिए, अपने फ्रेंड्स के, अपनी फैमिली के बारे में जानने का, ताकि जैसे जैसे अगर सिचुएशन मुश्किल होती है, वी कैन हैंडल दिस अप्रोप्रिएटली. जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, बीमारी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. उसके लिए ऑब्वियसली हमको प्रिकॉशंस लेने जरूरी है, लेकिन इस टाइम को अगर हम फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ सही तरीके से यूज करते हैं, आई थिंक शी शुड बी एबल टू हैंडल इट वेल. बाकी भाई अगर वो चीज नहीं भी हो रहा है, एज यू सिंह की काफी टाइम से हम ये चीज फैमिली मेंबर्स उसको आपकी डॉटर को सजेस्ट कर रहे हैं, अगर नहीं हो पाता है, देन probably by seeking a consultation with a mental health professional is going to be beneficial. क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो जानना जरूरी रहता है. So I think that can be done. At what point one should be seeing a psychologist or a counselor? Because बहुत लोगों में ये stigma है, to seek this kind of help, especially in our society.
तो as parents या as a community हमें कब सोचना चाहिए कि now this is the cut off point, we should seek medical help on this? आई थिंक वही जैसे मैंने पहले कहा कि जब कभी आपको अपने बिहेवियर में या अपने फैमिली मेंबर के बिहेवियर में सिग्निफिकेंट चेंजेस महसूस हो रहे हैं, क्या उनकी फंक्शनिंग खराब हो रही है, आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट वेयर यू शुड बी कंसल्टिंग. आप उस चीज का वेट मत कीजिए कि पहले चीजें खराब होने लगे या बिल्कुल चीज हाथ से निकल जाए उसके बाद हम जाके डॉक्टर के पास जाएंगे कि अब तो क्योंकि और कोई चारा नहीं है सो अब करके देख लेते हैं हम. मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी. अगर फिजिकल इलनेस, फिजिकल प्रॉब्लम्स नॉर्मल है, उसी तरीके से साइकोलॉजिकल इलनेस है या साइकोलॉजिकल इश्यूज भी नॉर्मल है. आई थिंक ये चीज हर किसी को समझ आएगा. जिस किसी के पास भी दिमाग है उस हर इंसान को साइकोलॉजिकल इशू, साइकोलॉजिकल इलनेस हो सकती है. इवन मी एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, आई एम नॉट इम्यून टू इट. हर किसी को किसी ना किसी पॉइंट पे कोई साइकोलॉजिकल इशू, नॉट नेसेसरली बीमारी, पर साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं. तो आप जब कभी आपको ये महसूस होता है कि आपसे चीज मैनेज नहीं हो पा रही है या फंक्शनिंग खराब हो रही है, प्लीज डू कंसल्ट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. उस चीज का वेट मत कीजिए. लोगों का काम है कहना, आप लोगों के बारे में अगर सोचते रहेंगे कोई और आपकी मदद करने के लिए नहीं आने वाला है. You do have to take that step and approach or seek consultation. और भाई जैसे मैंने पहले कहा कि it is a very common thing, even as per जो recent data है उसके हिसाब से 5 to 6% of the Indian population they have diagnosable psychiatric illness. और ये तो सिर्फ वो है जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, जो लोग क्लिनिक्स तक या डॉक्टर्स तक आ जाते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको जो कभी कंसल्ट नहीं करते हैं या अनफॉर्चुनेटली आज की टाइम में भी पहले झाड़ फूक कराने जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं. ये प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, ये चीज साइकोथेरेपी के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू ठीक की जा सकती है. सो प्लीज इसके बारे में कोई घबराइए नहीं, कोई डर वाली बात नहीं है. अगर हम फिजिकल है, एक टाइम था जब लोग डायबिटीज छुपाते थे, जब शुरू में नई ये बीमारी आई थी कि उनको शर्म आती थी बताने में ये चीज भी कि भाई हमें डायबिटीज है, बट देन इट बिकेम नॉर्मल. लकीली फॉर अस, अभी हमने पिछले, जब अगर मैं अपनी बात करूँ कि जब द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग साइकोलॉजी, तब से और अब में बहुत फर्क है. The improvement is a very good sign for us. People are more aware, people are more accepting, and they are seeking out help, so which is a good sign. Does eating a vegetarian or non-vegetarian food affect the mental health? As long as you enjoy it, is fine. आप जो भी खा रहे हैं एक बैलेंस तरीके से खा रहे हैं, आप उसको एंजॉय करके खा रहे हैं, उसका it will not harm you in any way. Okay. The important thing is the balance. जैसे मैंने बोला कि आप overdo मत कीजिए, बैलेंस रखिए दोनों का. आप चाहे वेजिटेरियन खा रहे हैं, it's absolutely fine. आप नॉन वेज खाते हैं, रेयरली खाते हैं, ओकेजनली खाते हैं, it is absolutely fine. But wait, do not overdo it. That is more important. The present 10th standard and 12th standard students are quite a lot in stress. So how should they be keeping themselves calm in this uncertain time? Because taking care of their future, क्या करना चाहिए उनको इस time में with these uncertainties? I think बहुत एक सिंपल सा उन स्टूडेंट्स के लिए, या नॉट जस्ट स्टूडेंट, पर आई थिंक हर किसी के लिए ये चीज एप्लीकेबल है कि यू ट्राई टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स. आपके हाथ में आपकी पढ़ाई है, आप चाहे 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, आपके हाथ में आपकी पढ़ाई है. आप अभी क्या पढ़ सकते हैं? अगर एग्जाम्स हों, ऑल्दो अब तो डिसीजन आ ही चुका है कि 12th के एग्जाम्स नहीं होंगे. अगर एग्जाम्स नहीं होते हैं, दैट इज नॉट इन योर हैंड. आप अपनी तैयारी कीजिए, अपने लिए अपनी नॉलेज गेन कीजिए. आगे जब भी आप अपने कॉलेजेस के लिए अपीयर होते हैं या इंटरव्यूज के लिए अपीयर होते हैं, इस बात की फिक्र मत कीजिए कि क्या होगा, बिकॉज see, it is something which everyone across the globe has gone through.
ऐसा नहीं है वो सिर्फ आपके लिए, यू आर नॉट द ओनली वन, इट इज अ यूनिवर्सल थिंग। हर कोई ये चीज समझता है कि ये पिछला 1.5-2 साल नॉर्मल नहीं था। तो जैसे पहले का जो पैरामीटर होता था या पहले जिस तरीके से लोगों को जज किया जाता था इंटरव्यूज में, इवन मार्किंग सिस्टम में, अब वो चीज फॉलो नहीं होगी। तो हर चीज का एक नया पैटर्न आएगा, हर चीज में एक नई डेवलपमेंट होगी या अडेप्टेशन होगी। सो भाई, टू कीप योर सेल्फ इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, प्लीज डू व्हाट इज इन योर हैंड्स। आप अपनी तैयारी कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, अपनी स्किल्स पर काम कीजिए, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, इट कुड बी एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। पर जो आपके बियॉन्ड है, दैट इज जो रिजल्ट है या एग्जाम होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा, दैट इज बियॉन्ड यू। आप अगर उस चीज के लिए परेशान रहेंगे या उस चीज का वेट करते रहेंगे कि पहले मुझे पता चल जाए कि एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे या पहले डेट शीट आ जाए तब मैं जाके पढ़ाई करूंगा, आई थिंक यू विल मिस द बस एंड आप अनफॉर्चुनेटली अपने आप के लिए बहुत सारा बर्डन लाने वाले हैं। सो ऑन ए रेगुलर बेसिस थोड़ी सी चीजों को कंटिन्यूस रखिए, एज इन पढ़ाई कीजिए, अपनी स्किल्स पर काम कीजिए, एंड वही ट्राई टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, नॉट थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड यू। Hand washing or sanitization is a common thing which people are doing these days. But how does one ensure that it doesn't become like an obsessive compulsive disorder? Because जिन लोगों को OCD है या नहीं है, वो इन सब चीजों के कारण OCD में नहीं कन्वर्ट हो, how does one ensure? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर सुप्रिया, क्योंकि भाई अनफॉर्चुनेटली पिछले 1.5-2 साल में हमने ये चीज देखा है कि जिन लोगों को ओसीडी की प्रॉब्लम थी, स्पेशली हैंड वॉशिंग का या फियर ऑफ कंटामिनेशन था, वो काफी बढ़ गया है काफी केसेस में। जिनको नहीं था उनमें थोड़ी थोड़ी ये टेंडेंसी डेवलप हो गई है बिकॉज द टाइम्स आर नॉट नॉर्मल। सो आई थिंक भाई द इम्पोर्टेंट थिंग इज आप उतना कीजिए जितना एडवाइस है। फॉर एग्जाम्पल जो हैंड वॉशिंग इज, आप अगर एक बारी में हाथ धोते हैं, इट इज 20 सेकेंड्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा आपको हाथ धोने का जरूरत नहीं है। तो उतनी बारी में हाथ, एक बारी 20 सेकेंड के आसपास अच्छे से हाथ धोने से आपके हाथ साफ हो जाते हैं, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप उससे ज्यादा बारी कर रहे हैं या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्शन। आप अगर अपने आप से ये चीज पूछेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्शन, क्या मैं ये हाथ इसलिए धो रहा हूँ ताकि हाथ साफ हो जाए, या जैसे ओसीडी में होता है कि मैं हाथ इसलिए धो रहा हूँ ताकि मुझे वो सेटिस्फैक्शन हो जाए, मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाए, मुझे संतुष्टि हो जाए कि हाँ ये हाथ साफ हो गए हैं। अगर वो सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं या संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, दैट इज अ क्लियर इंडिकेटर कि यू हैव गॉन बियॉन्ड दैट लाइन, जहाँ पे वो इट इज विद इन दैट नॉर्मल लिमिट, और आपको प्रोबेबली चांसेस है कि ओसीडी के सिम्टम्स हो या शायद ओसीडी भी हो। लेकिन वही इट इज अ प्रॉब्लम, इट इज वो ऐसी बीमारी है जो कि डेफिनेटली ट्रीटेबल है विद साइकोथेरेपी एंड सर्टेन मेडिकेशंस इफ नीडेड। तो आई थिंक वही कि उतना कीजिए जितना प्रिस्क्राइब्ड है, जितना एडवाइस्ड है, जितना नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, इवन इन दीज टाइम्स। एक बारी हाथ धोना इज इनफ, बार बार हाथ धोने का जरूरत नहीं है। With this virtual setup which is happening and social distancing, do you think it's promoting one to be an introvert? और हम क्या कर सकते हैं कि we don't become an introvert and affect our mental health? Introversion does not necessarily mean कि it is a problem. Firstly, I think thank you for bringing this up, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये एक गलत फहमी है या मिसकंसेप्शन है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप मेंटली वीक है या आपको कोई बीमारी है या आप ठीक नहीं पड़े, आप बोरिंग से इंसान हो, आप लो हो। ऐसा नहीं है। आप आई डोंट नो कि शायद कई लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था, देयर वर सेवरल आर्टिकल्स in the newspapers, in the magazines, in the people are talking in about this over social media as well, कि बहुत सारे लोग ये चीज सोच रहे हैं कि यार इंट्रोवर्ट्स अपना टाइम स्पेंड कैसे करते थे। सो दे वर एक्चुअली बीइंग जेलस ऑफ देम कि उनको ना ज्यादा लोगों की जरूरत हो पड़ती है, ना ज्यादा एक्टिविटीज में एंगेज करने की जरूरत पड़ती है, दे आर फाइन विद बीइंग बाय देमसेल्व्स। हाउ डू दे डू इट? एक्सट्रोवर्जन इज, उसको प्रमोट किया गया है, उसको ज्यादा ग्लैमरस दिखाया गया है, इसलिए लोगों को वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है।
लेकिन वही the important thing is चाहे आप introvert हो या आप extrovert हो, the important thing is you need to be comfortable in your own skin. आप जो है जैसे हैं आपको अपने आप में comfortable होना, at ease होना ज़्यादा ज़रूरी है. और ये physical distance है, ठीक है, that is needed, पर वही कि हम emotionally distant ना हो, that is more important. तो so even though we have these, जैसे पहले भी हमने बात किया कि ये टेक्नोलॉजी है, हम इसको यूज करें, फिजिकल डिस्टेंस चाहे मेंटेन करना पड़ रहा है, that is okay, पर हम लोगों से टच में रह सकते हैं, we can still be emotionally close to them, and that does not mean कि अगर आप physically थोड़ा सा किसी से दूर है, you become an introvert or you are in isolation. You can still be very close to people emotionally अगर आप उनसे रेगुलर कांटेक्ट में हैं, उनके साथ अपनी बात शेयर कर रहे हैं और दूसरे लोग आपके साथ उनकी बात शेयर कर रहे हैं. So they are discussing things with you, they are sharing things with you. That is more important and not just the physical distance. I think एक ही बहुत पुरानी saying भी है कि distance makes the heart grow fonder. So probably it might help us to come closer now. कि हम फिजिकली अगर नहीं मिल पा रहे तो हम एक्चुअली शायद अब इमोशनली लोगों से ज़्यादा क्या बोलते हैं कनेक्ट कर पाए. So we need to use it. I think this is the last question of this evening. Somebody wants to know, there is a depression with the bowel syndrome. How one should be dealing with it? डिप्रेशन के लिए आई थिंक जैसे मैंने पहले बोला कि वो चीज़ हमको करना ज़रूरी है. बाउल सिंड्रोम has a lot to do with the routine, has a lot to do with the thought processes, and उसमें बहुत सारी avoidance भी आने लगती है, which promotes the anxiety. So I think अगर हम उन चीज़ स्पेशली IBS के लिए हम अगर पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं या ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं एंड we start working around them, I think it is a problem which can be very well managed. Yes, it is definitely a treatable condition. Thank you very much, Mr. Karthik, for such an informative talk. I think especially with this overwhelming times, you know, the takeaway message home is that we should rediscover ourselves, reorganize ourselves, and calm our minds. I would now like to request Mr. Vikas Anand, the CEO of SafeTree, to deliver his vote of thanks to Mr. Karthik. Thank you so much, Dr. Thank you, Karthik. I really found it to be very, very useful. I was hooked on to the machine from the start itself. So, and the best thing was, आपने ना बड़ा easy and simple way में explain किया. This mental issue, particularly during the COVID, is a very, very alarming situation. While the reports or numbers are not being published, but I am sure with the emerging scenarios, we being at home, job losses, kids at home, and that was also reflected in the questions. Definitely, it's a kind of a problem, and we need health professionals like you to come to the SafeTree platform and talk about it. So, many thanks for that. You presented a very simple, easy, and useful information for our viewers. Definitely, from the behalf of SafeTree and on the behalf of our customers, we were live on the Facebook. It would have been a very, very interesting session. Thank you very much, and I wish you all the best. Thank you so much, and congratulations for the initiative. It's a very good thing. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Supriya. Thank you, everyone. Now we'll end the session. Thanks everyone for joining us. आपने, I'm sure, आप सबको ये बहुत अच्छा लगा होगा. These kind of sessions, we'll be having these sessions every Sunday. So please hooked on to it. अगर आपको कोई टॉपिक पे कुछ you want to listen from an experts, do feel free to contact us. We are available at customer service at safetree.in. We have a toll-free number which is available on our website www.safetree.in, and we'll be more than happy to help you. And be safe, and all the best to you, and be happy. Thank you.